Hi all, welcome to our new episode of Extraordinary. I'm founder Karuna and जैसे हमने कहा हमेशा कहती हूँ मैं कि this channel and this group is formed to connect with all the naris in the world, all the naris actually on this planet and get their stories so that we can learn from their stories because I believe everyone has a unique journey of life and we can definitely learn from each other. So today I am with a beautiful Nari and a very strong person who her story is very inspiring. And today we're going to talk to her, know her journey of life, and I'm sure many बहुत सारी नारियां हैं जो इनसे इंस्पायर होने वाली है because I really got really inspired and motivated through her. So hi. Hello. Okay, so she is Deepika. Deepika, you are based out of Mumbai, right? Yes, Mumbai. So Deepika, tell me tell our audience about you, something about you. Myself, Deepika. I'm a Maharashtrian. I'm a mother of 8-year-old princess, and I'm based in Thane, in Mumbai. And by profession, I am a makeup artist, bridal, specialized in bridal makeups. And I'm a self-living person, and I like to motivate others. I like to do chapar a lot. we all women do that. Okay. I'm staying in a joint family. Father-in-law is there, mother-in-law, my brother-in-law is there, and we three. My Okay. husband, myself, and RV. RV. So RV is your daughter's name, right? Yes. Very cute name. And you said you stay in Thane. And you're a Thane. makeup artist. You're a makeup artist or you're a freelancer? Freelancer. Soon I'm planning to open my own salon. So the planning is going on. Let's hope for the best that it will be soon in 2021. There will be the opening. I hope for the best. Yeah, I know. And this lockdown, once it ends, I'm sure things are going to settle. Lockdown में Yes, बहुत I'll be सारे waiting for that only. I know. So here I want to tell that Deepika के बारे में I don't want to say a lot because I want Deepika to talk a lot today. Why Deepika? Because there are a lot of things in her life जो smile कर रहे हैं ना इसके पीछे इतनी अच्छी beautiful story नहीं है. She has lot and lot to talk about her, which is not smiling story. It's story filled with lot and lot of pain and lot of ups and downs, more of downs. So I want Deepika to share her story, and guys, really do share this with everybody because she can help many people with her story. So Deepika, I want आज आप extraordinary में आए हो. And when we connected, I remember you telling me few things about you, and I just couldn't talk further because मैं थोड़ी देर के लिए actually नम हो गई थी मैं बोलूं क्या. Yes. Just share with our audience your story. ओके मैं थोड़ा बचपन से लेके ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि पीपल कैन रिलेट. Sure. तो बचपन से आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल देख के आए हैं. देयर वर नो फीस टू जॉइन ट्यूशंस आल्सो, तो घर में ही पढ़ाई करते थे. एंड द फर्स्ट चैलेंज आई फेस 8, 9th एंड 10th, ये 3 साल के लिए मेरे घर पे बिल्कुल लाइट नहीं थी. मीटर वाज कट डाउन. Oh my तो God. हम लोग जो पोल की लाइट होती है, स्ट्रीट पोल की, उसके नीचे बैठ के हमने पढ़ाई किया. दैट वे आई पास्ड माय एसएससी 10th. एंड फिर Wow. धीरे धीरे फिर कॉलेज ज्वाइन किया. तो कॉलेज में ऐसा था कि मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी साइंस में एडमिशन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि अगर मेरा साइंस का एडमिशन होता तो भाई का नहीं हो पा रहा था. तो फिर हम दो ही थे भाई बहन, तो हमारा कॉमर्स में एडमिशन हुआ. दैट वाज द सेकंड चैलेंज. फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ एंड जैसे ही मेरा 10th हुआ आई स्टार्टेड वर्किंग. जो भी जॉब मिला, सिम कार्ड से लेके सब कुछ सेल करने का जॉब किया. बाइक के शोरूम में फ्रंट ऑफिस में जॉब किया. नॉर्मल डीएसए में सिम कार्ड कॉलिंग पे सिम कार्ड सेल करने का जॉब किया. Wow. दैट्स द जर्नी स्टार्टेड. फिर अर्न करना 10th के बाद अर्निंग स्टार्ट किया, तभी पता चला कि पैसे की वैल्यू क्या होती है. देन 2011 में गॉट मैरिड. दैट वाज माय लव मैरिज. 2011. This 2011. Okay. यस. एंड फिर आरवी मेरी लाइफ में आई 2012 में. Okay. बट देन मेरे वो रिलेशन में क्लैशेस होने लगे एंड कुछ रीजंस की वजह से आई गॉट सेपरेटेड. तो Okay. आरवी वाज जस्ट 3 month old when I got separated. Oh my And God. And were you working that time when you got yes, separated? I was working. So that Okay. was the main point on which I was like कि मैं कर सकती हूँ, अपनी बच्ची का ख्याल मैं अकेली रख सकती हूँ.
माय पेरेंट्स वेर फ्रॉम माय साइड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. माय फैमिली वाज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव अभी तक भी. तो फिर आई गॉट सेपरेटेड एंड लिटरली आई वाज स्टेइंग अलोन विथ माय डॉटर. हम दोनों ही रहते थे. बच्ची मेरी 3 महीने की थी तब से आई गॉट सेपरेटेड. फिर Oh मैंने खुद my का God. एक रेंट पे घर लिया है, एक चॉल, छोटी सी चॉल में. कुछ भी नहीं था मेरे पास, थोड़े थोड़े सामान थे. फिर आई टुक फ्रिज. फिर मैंने खुद की जो 2 व्हीलर मेरी स्कूटी है वो लिया. फिर मैंने टीवी लिया. ऐसे धीरे धीरे मैंने सब पूरा घर अच्छे से ये किया. So और you did it प्रॉप- alone, like you separated. आप अकेले yes, yes, 3 महीने की बच्ची को लेकर आप अकेले हाँ, रह रहे थे. Oh my yes. God, that's. और प्रॉब्लम्स भी बहुत होते थे. जैसे फीडिंग का टाइम होता था और मैं उसको फीड भी नहीं कर पाती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी मेरे को. तो फिर मैं मम्मी के पास उसको छोड़ती सुबह, फिर ऑफिस जाती, फिर शाम को आके उसको लेके फिर मैं मेरे घर आती. एंड आई वाज लाइक कि सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नीचे नहीं होने देना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, करना है तो खुद ही करना है. और जैसे लव मैरिज था तो कुछ फैमिली मेंबर्स का था कि तूने खुद से करके लिया ना तो भी तू संभाल, ऐसे. तो आई वाज लाइक कि So आई it आई was a कैन डू एंड love आई विल डू marriage. इट. So it was a love Yes, marriage. first, Your first marriage was a love marriage. Oh, yes, okay. it was a love marriage and बहुत clashes, क्योंकि जब भी प्यार में थे तो बहुत अलग था एंड जब अभी शादी हो sorry. गई तो अलग चीज है. तो आई गॉट सेपरेटेड एंड फिर मेरी जो केस है, जो कोर्ट केस है, वो 3 साल आई वॉज इन दैट. मेरा फिर ऑफिस पे इम्पैक्ट Hmm. होने लगा. मेरी कोर्ट की केसेस तो मैं अकेले जाती थी. ऐसे मैं पतलू हूँ, ऐसी छोटी सी, तो लोग बोलते थे कि सच में इसका डिवोर्स है, ये कॉलेज गोइंग लग रही है. तो फिर लोग बहुत अलग नजर से देखते थे. दैट वाज वेरी टफ टाइम कि मैं, मतलब वो लिटरली ऐसा मेरे को चुभती थी उनकी आंखें लोगों की, जब I कोर्ट में know. जा रही हूँ या जब मैं अकेले रहती थी. तो चौल में आजू बाजू में लेडीज थी. एट दैट टाइम मैंने मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया था, बिकॉज मेरे को उस बंदे का नाम भी नहीं चाहिए था, उसकी कोई याद भी नहीं चाहिए थी. फिर आरवी का एडमिशन का जब भी टाइम आया तभी देवर लाइक कि इसका नाम, तो आई वॉज कि मेरे को उसका नाम भी नहीं चाहिए. Okay, in school, you're saying school admission. तो मैंने उसका नाम हटा के मैंने मेरा नाम लगाया और मेरे मदर का मैंने लास्ट नेम यूज. यस, यस, स्कूल एडमिशन मतलब प्ले ग्रुप में डालने की भी बात आई तो फिर मैंने उसका जो फर्स्ट नेम पहले दृष्टि था, आई चेंज इट टू आरवी. एंड देन जो मिडिल नेम था वो मैंने दीपिका कर दिया और मेरी मॉम का सरनेम यूज करना फिर से स्टार्ट किया. तो फिर मैंने उसको आरवी दीपिका सावंत ये नाम से ही वो स्कूल में थी, ऐसे. तो वो मुझे पूछती Deepika, थी कि I want सब to लोग ask फादर you. का नाम. I'm sorry to interrupt you. I just want to That's ask you it. कि इंडिया में हमने ये एक्चुअली है इंडिया में फादर्स नेम बहुत जरूरी होता है इन योर नेम and people judge you if you have a female name in your as a Yes. middle name. I have seen that because I use my mother's name. So मुझे ये बहुत challenge हुई थी. So when you did this in school, so did the school accept it easily or you had to go through some kind of legal changes, anything as such? In the starting, I Yeah, I faced think there's a many. network issue. One second. I think there's a Yes, I network faced slice. many problems. The principal then, yes. Now it's okay. Yeah, sorry, you were saying there was some you said about the school issues. Yes, there were in the starting they were not ready to accept the name. They asked me for the documentation, the birth certificate. But always in the birth certificate, my name was not mentioned in the middle name. It was mentioned as the mother name. Then I consulted my advocate, and she told me that you can take a step and definitely you can add your name as in the middle name. So I did that. I had a meeting with the principal also. I requested that I'm a single mom and I'm Mhm. separated now, so uska naam laga ke koi matlab hi nahi. I'm not going to continue my life with him. और मैं नहीं Exactly. चाहती कि मेरी बच्ची को ऐसे बंदे का नाम मिले जो नहीं है. ही इज नॉट इवन बॉदरिंग कि क्या हो रहा है हम दोनों के साथ, Right. ऐसे. तो फिर मैंने फिर वो सब बहुत तब बहुत सारी चीजें होने के बाद दे एग्रीड. एंड फिर आरवी का स्कूल में नाम लगा कि आरवी दीपिका सावंत. तो जब भी ओपन डे वगैरह होता था तो सब फादर एंड मदर आते थे, कपल आते थे मोस्टली साथ में, क्योंकि छोटे बच्चों के नर्सरीज में मोस्टली दोनों कपल जाते हैं. एक Exactly. स्टैंडर्ड होते, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में तो पेरेंट्स कोई भी एक अकेला भी जाएगा तो चलता है. बट जब बच्चे रहते हैं तो वी प्रिटेंड कि नहीं हम दोनों जाने चाहिए, ऐसा. तो तभी मुझे आरवी पूछती थी की मम्मा सगळे मम्मी पप्पा दोघं येत आहेत, तू एकटीच का येते, तू अकेली क्यों आती है, ऐसे. तो फिर मैं उसकी बोलती थी कि तुझे जे बाबा आहेत ना ते माझे बाबा आहेत, मतलब जो मेरे आई बाबा है मैं उसको बोलती थी वो तेरे बाबा है करके. तो उसको कभी भी कोई भी पूछता था शी वॉज लाइक की ते बाबा आहेत ते कामाला गेले, बाबा कामाला गेले.
ऐसा, सो एज अ क्योंकि शी वाज चाइल्ड टू उसे स्मॉल। भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हाँ, सिचुएशन था। डिफिकल्ट था। एनुअल फंक्शन था उसका, डांस था, तो देयर वर डांस फॉर पेरेंट्स, जिसमें पप्पा एंड मम्मा दोनों मिलके डांस करेंगे। आरवी वाज की मम्मा तू एकटी है, कशी डांस करना, मैंने बोला हम करेंगे, तो अभी मैंने अकेली ने डांस किया था एंड आई वॉन्ट फर्स्ट प्राइज इन दैट। और ऐसे शी दैट्स वाज ग्रेट। वेरी हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। फिर लेटर ऑन मेरी फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड नाउ, अभी शादी करनी चाहिए ना। 1-1.5 साल आई वाज नॉट इन दैट सेट ऑफ माइंड कि मुझे नहीं करनी शादी। आई वाज हैप्पी, बहुत अच्छे से चल रहा था सब, फिर भी आई बाबा फोर्स करे थे नहीं शादी करते, शादी करते। देन आई गॉट रजिस्टर्ड इन शादी.com, भारत मैट्रिमोनियल और ऑल मैट्रिमोनियल साइट। देन फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी उसमें भी। अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा है तो दे विल कांटेक्ट यू, दे विल चैट विद यू, एंड लेटर ऑन जब आप डॉक्यूमेंट्स मांगो, पैन कार्ड या आधार कार्ड, देन उसका कोई जवाब नहीं आता था। दे जस्ट यूज्ड टू डू टाइम पास। ऐसे भी बहुत सारे मिले। Okay, so on matrimonial sites, yes, okay, okay. So this is यस, one learning कि matrimonial site पे nothing is यस, यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा अलर्ट, क्योंकि एक बंदे ने तो विजिटिंग कार्ड तक दिया था saying that I am assistant manager in such and such organization. When we visited that location for that, ऐसे कोई भी कंपनी ही नहीं थी ना, गूगल पे कुछ था एंड पर्टिकुलर दैट लोकेशन पे भी कुछ नहीं था। तो इट इज वेरी सेंसिटिव है बहुत। ऐसे ये है कि आपको एक एक अगर आप जो भी अनमैरिड है हमारे ग्रुप्स में स्पेशली, उनको रिक्वेस्ट है कि अगर मैट्रिमोनियल साइट से आप जा रहे हो तो प्लीज आप अच्छी तरह से क्रॉस वेरीफाई करो उनसे। जैसे वो बंदा बोल रहा था तो मैंने बोला कि असिस्टेंट मैनेजर हो तो ब्लेजर, सारे फोटोज ऐसे नॉर्मल थे। मैंने बोला आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो ब्लेजर में आपका कोई फोटो होगा, कोई right, एनुअल right. जनरल मीटिंग अटेंड करी होगी, ऐसे कोई प्रोफेशनल ऑफिस का ऐसे कुछ पिक भेजो, तो नहीं था। पैन कार्ड नहीं भेजा, आधार कार्ड नहीं भेजा, तो एट दैट टाइम आई गॉट कि कुछ तो फिशी है एंड आई शुड चेक करके Exactly, right. ऐसे। देन उसके बाद में अभी जो मेरे हस्बैंड है निखिल जावड़े उनकी रिक्वेस्ट मुझे आई। तो ये आपको मैट्रिमोनियल से मिले या? यस, यस, मैट्रिमोनियल, भारत मैट्रिमोनियल से। एंड फिर मैंने सब चेक किया तो इनकम वाइज, एजुकेशन वाइज हमारा सारी चीजें मैच हो रही थी। एंड उनका भी डिवोर्स हुआ था, मतलब निखिल इज ऑल्सो डिवोर्सी एंड उसको भी एक डॉटर है। वो आरवी से 1 साल छोटी है, ओके, बट शी इज विथ हर मॉम नाउ इन राजकोट, गुजरात। ओके। मनस्वी, मनस्वी नाम है उसका। शी इज ऑल्सो वेरी क्यूट। तो That's फिर sweet. Okay. रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया। एक संडे को हम मिले तो हम दोनों को हम एक दूसरे से सब शेयर किया। आई क्राइड, मैंने पूरी स्टोरी बताई। और मेरे को ऐसा था कि मैं बहुत बंदों से मिली, लेकिन ये बंदा ऐसा था कि मुझे फर्स्ट मीटिंग में बहुत जेन्यून लगा। सारी Okay. बातें जेन्यून थी, सारी बातें क्लियर थी। देन मैंने मेरी फैमिली को बताया। नेक्स्ट संडे, मतलब विद इन 7 days, नेक्स्ट संडे हमारी फैमिली मीटिंग हुई एंड सब फाइनलाइज होके हमारा शादी का भी डेट फिक्स हो गया। Okay. ऐसे, Just in 1 week, these things happen. यस, Wow. यस। एक्चुअली That's nice. कुंडली वगैरह मैच करना था, वो भी सब मैच कर लिया। उसकी मॉम ने पूछ भी लिया कि वो लड़की अच्छी है या नहीं घर के लिए। दैट ऑल्सो एवरीथिंग गोज वेल दैट टाइम। एंड मुझे जो भी रिश्ते आ रहे थे दे वर लाइक कि वी वांट टू मैरी विथ यू, बट हमें आरवी नहीं चाहिए, ऐसा। Okay. तो मेरा वो पॉइंट था कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद के लिए उसकी लाइफ ये नहीं कर सकती हूँ, मैं उससे सेपरेट ही नहीं हो सकती। तो निखिल वाज दैट कि Exactly. यस, उसको भी एक बच्ची थी है, मतलब। तो ही वाज कि उसको पता है मदरहुड क्या है, फादरहुड क्या है, अपनी बच्ची से अलग होने का दुख वगैरह, क्योंकि मनस्वी इज नॉट विथ अस नाउ। तो वो है, बट अभी उसकी निखिल की जो वाइफ, एक्स वाइफ, उसकी भी शादी हो चुकी है। तो मनस्वी किसी और को फादर बोल रही है, और आरवी का जो एक्चुअल फादर है, जो बर्थ गिविंग फादर है, वो नहीं है, और आरवी इनको फादर बोल रही। तो बहुत सारे ऐसे बट दैट चीजें इज हैं। सो स्वीट कि रिलेशनशिप्स को फिर भी वैल्यू कर रहे हैं। आपके यस, हस्बैंड निखिल ने इस चीज को समझा, ही एक्सेप्टेड दैट। यस, यस, उसका नाम दिया। अभी आरवी का तो नाम है आरवी निखिल जावड़े। तो शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी नाउ कि वाओ। पापा है। और उसको ये पता है आरवी को कि जो बर्थ देने वाले फादर है वो कोई और था। क्योंकि ओके। व्हेन आई वाज लिविंग अलोन, कुछ चीजें थी जो मेरे को आरवी को बतानी पड़ी सिचुएशन के हिसाब से, कि व्हाई आई एम अलोन, व्हाई योर फादर इज नॉट विथ मी।
मैंने कुछ चीजें उसको बताई सिचुएशन की वजह से कि आई एम अलोन. शी नोज कि ये मेरा सेकंड मैरिज है, बट शी लव्स अ Wow. फादर अ लॉट. उसकी मेरे से ज्यादा बॉन्डिंग निखिल से है. मतलब वो Wow. सोने के लिए भी उसको निखिल ही चाहिए, मस्ती करने के लिए भी निखिल ही चाहिए. टचवुड दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. Are getting some network issue. शायद दीपिका के यहाँ पे थोड़ा सा network issue इसलिए screen stuck हो रही है. Okay, so हाँ हाँ हाँ. ये दिस इज द ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल है, बट ये चीजें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देती है. You So have to manage those but things. but yeah, it's really beautiful because I like one thing about what Deepika did is that she did not lie to her daughter. You kept everything very transparent to her. She knows what her story is, and which Yes. is really commendable because I've seen a lot of families, they don't share all these details with the kid. They feel कि बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, पर शायद ये चीजें उनको आगे जाके काफी अफेक्ट करती है. यस यस. एक्चुअली आई वाज वरीड कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो तभी अगर उसको वो चीज पता चलेगी तो मुझे समझाने में बहुत ज्यादा तकलीफ बहुत. होगी. एट दैट टाइम माइट ऐसा हो सकता है कि वो निखिल को हेट करने लगे. तो मैंने सोचा एग्जैक्टली. अगर बचपन से ही चीजें पता है तो उसको पता है कि मम्मा ने मुझे पहले ही सब चीजें क्लियर किया. बड़े होने के बाद आज का जनरेशन ऐसा है कि वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो आई वाज लाइक कि हम ये रिलेशन में, एक रिलेशन तो मेरा स्पॉइल हुआ था, मुझे कोई भी चांस ही नहीं लेना था कि ये रिलेशन में कुछ भी छोटी सी बात रहे कि हम दोनों में कुछ क्लैशेस हो या आरवी इसे हेट करे ऐसा. तो शी नोज कि ऐसा कि निखिल इज माय सेकंड फादर ऐसे. बट उसके लिए निखिल इज एवरीथिंग नाउ. Wow, that's sweet. So I hope we can meet Nikhil also. Yes. If he can join us. Hi, Nikhil. Hello. I Hi, guess I'm Karuna. meeting again. So, Nikhil, so many beautiful things about you and RV's relation. Actually, हमको Yeah. दीपिका से पता चला आप और RV का beautiful एक जो bond है. It is something very commendable. So you Yes, say yes. something about दीपिका ने तो RV और आपके बारे में इतना बोल दिया. मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में और दीपिका के बारे में कुछ बताइए. Okay. So ऐसा है कि जब भी हम लोग शादी करने वाले थे तो मैं काफी मतलब एक्साइटेड था वो टाइम पे, क्योंकि काफी सारी चीजें मैच हो रही थी. आरवी को लेके थोड़ा मुझे कंसर्न था कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं. प्लस अभी कैसा होता है ना, बीइंग अ मैन, मुझे भी अभी मेरी भी बच्ची थी. सो आरवी को एक्सेप्ट करना भी मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था. तो वो Exactly. कुछ 6 to 8 months थोड़े डिफिकल्ट थे, या 1 साल आप बोल सकते हो मैक्सिमम. बट फिर वो कैसा है ना कि कांटेक्ट में रहने के बाद फिर वो हमारा बॉन्डिंग बनता गया. फिर वैसे वैसे उसको भी मेरे बगैर नहीं जमता था और मुझे भी उसके बगैर नहीं जमता था. तो उसको मतलब मस्ती करने के लिए मैं ही चाहिए. वो दीपिका से कभी नहीं मस्ती करती. वो हमेशा मेरे से ही मस्ती करती है. मुझे इतना तकलीफ देती रहती है, बहुत खेलती है मेरे से. How sweet. हाँ, तो So, but फिर it's अभी very इधर. sweet. So honestly, आपने ये बात बोली कि हाँ मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई इनिशियली बिकॉज कुछ लोग झूठ भी बोल देते कि नहीं मैंने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया. बट दिस इज वेरी नाइस निखिल दैट यू एक्चुअली सेड कि हाँ इनिशियली तकलीफ हुई है बट वी नो ईच अदर एंड वी स्टार्टेड स्पेंडिंग यस, टाइम एंड राइट. हेल्प राइट. वाओ. हाँ, क्योंकि मैं उसके थ्रू गया हूँ, तो अगर प्रैक्टिकली बोलना चाहूंगा तो मतलब बोल के एक्सेप्ट करना और प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है. तो जब भी आप उसको अटेम्प्ट करते हो, ट्राई करते हो रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल होता है. ऐसा नहीं है कि नहीं होता. बट ऐसे कि आपको अभी वो छोटी बच्ची है तो आपको ही वो 100% आपको खुद को ही देना है, उसको समझ के लेना है. तो वैसे सारी सब बातें हुई थी. बट एक बात है आप दोनों की बातों से ये मुझे पता चल गया कि आरवी इज द ओनली सेलिब्रिटी फॉर यू. बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा आरवी के बारे में इतनी अच्छी बातें की है. बट स्टिल अगेन आई आस्क कि एक दूसरे के बारे में भी कुछ बताइए अबाउट योर बॉन्ड. So how Actually, did you feel when you met? I Deepika told me आप लोग मिले, आप लोग को अच्छा लगा. She told you right. everything about her, and you also had been through a little bit of ups and down in your past. So जो Right. initial आप लोग का connect हुआ है, जो भी आपका journey start हुआ, how did you start with that? अभी कैसा है, हम लोग का मोस्टली स्टोरी सिमिलर ही था.
और मोस्टली जो भी बोलते हैं ना एक स्वभाव होता है इंसान का, तो वो भी मैचिंग था, वो भी इमोशनल थी, मैं भी इमोशनल था। और काफी Okay. चीजें जो लाइक्स डिसलाइक्स थे या फिर उसका जो वर्किंग प्रोफेशन था वो भी मेरे से काफी मतलब 90% मैचिंग था। Okay. तो उसने एक चीज मुझे बोली थी, मतलब जब भी मैं उससे शादी करने वाला, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, कि तू मम्मी पापा का कुछ टेंशन मत ले, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो फैमिली के साथ रहे। How तो sweet. Okay. उसकी वही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि तू मम्मी पापा का कुछ टेंशन मत ले, मैं दोनों को संभाल लूंगी बराबर से, उनको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो वो मुझे बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, फिर मैंने उसको हाँ कर दिया था। फिर मैंने फिर पेरेंट्स से भी बात की, पेरेंट्स भी रेडी थे, तो पेरेंट्स फिर नेक्स्ट वीक मीटिंग हुआ, फिर वैसे सब हुआ आगे फिर। Yeah, she told me within a week आप लोग की शादी भी तय हो या गई. That is sweet. Yeah, that's तो so एक्चुअली sweet. कैसा था कि रिलेशनशिप को काफी कम टाइम दिया था हम लोग ने मिलने के बाद, बट हम लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे, क्योंकि लाइक्स डिसलाइक्स और प्लस जो स्वभाव मैच हो रहा था हम लोग का, तो उसमें हम लोग को कोई इशू नहीं था। तो भी हमने सोचा ही था कि हमको शादी करना ही है, तो फिर सोचा क्यों डिले करने का। इट्स लाइक Exactly. दैट। So, so how did you feel when you started living together? Was it different या फिर बहुत दिक्कत आई है या पहले भी झगड़े वगड़े से ही शुरुआत हुई है, कैसे रहा? नहीं नहीं नहीं, झगड़ा तो हमारा बहुत कम होता है, बहुत कम Really? टॉपिक पे होता है। एक्चुअली एक बात अच्छी है कि निखिल एंड मेरा जो डिसीजन होता है ना वो राइट, 95-99% 95% मैच। सेम होता है किसी Okay. भी चीज Wow. पे। मतलब हम दोनों एग्री होते तो एग्री होते, डिसएग्री तो डिसएग्री, तो क्लैशेस नहीं होते डिसीजंस को लेके। ऐसा Wow. That's चॉइस, sweet. डिसीजंस, हॉबीज, जैसे इसको बाइक राइडिंग पसंद है, मुझे बाइक राइडिंग पसंद है, बहुत सारी चीजें हमें पसंद है जो हमारी मैच होती है। घूमना Okay. पसंद है, खाने से लेके शॉपिंग से लेके छोटी छोटी चीजें बहुत मैच होती है, चॉइस मैच होते हैं। किसी चीज का डिसीजन लेना है तो इसकी सोच और मेरी सोच सेम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। So the तो people क्लैशेस who so the people who think कि opposite attract, आप लोगों को गलत कह रहे हो. कोई कोई चीज में अपोजिट है हम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम हो जाता है, तो हमें झगड़े का वो चांस नहीं होता है। झगड़े होते हैं तो कभी कभी फ्रैंकली बताती आरवी की वजह से होते हैं, क्योंकि निखिल इज बिट स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन है, उसको टाइम टू टाइम उठना, हेल्दी खाना, सब पढ़ाई टाइम पे, और मैं थोड़ी उस चीज में, मेरा आरवी के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। ये डांट देते तो मुझे भी रोना आ जाता है कि जाऊते नको ओरडू। बोलते हैं कि तू बिगाड़ देगी उसको, ऐसे मत कर, थोड़ा सा एक का डर और एक का प्यार होना जरूरी है। That तो is true. मुझे I agree to this. ये मेरे घर पे भी होता है. I have a son now, a 5-year-old. So even me and my husband has this kind of different way of handling Yuvraj, my son. So I can understand that point. Okay. It's cute, yeah. I really, really love. I'm liking the way you guys are showing a different view towards a marriage and family. It's really very, very cute, sweet actually. To all the audience, so अभी तक आपने जो भी सुना है, this is not the only part of the story, because people, if somebody thinks that this is about only a woman getting into a new relationship is the only inspiring thing about her, it's not. There is something which is really, really very painful, which I think Deepika will share with us. Yes, Deepika, you यस comfortable, right, to share? यस यस यस, बहुत अच्छे से एक साल मेरा गुजर गया इन दिस न्यूली मैरिड लाइफ। बहुत अच्छे इन लॉज ने बहुत अच्छे से बॉन्डिंग किया। आई वाज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट कंपनी, आई वाज वर्किंग विद फर्स्ट डेटा, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम डोंबिवली टू थाने। एट दैट टाइम वी वर स्टेइंग इन डोंबिवली। अच्छा, okay. तो एक दिन अचानक संडे था एंड मैं आरवी को जस्ट नहला के बाहर लाई एंड आई वाज ड्राइंग अप हर हेयर टॉवेल से, तो अचानक मुझे लेफ्ट साइड में पेन होने लगा। आई थॉट कि पता नहीं कुछ फूड इन्फेक्शन है या किडनी स्टोन का, ऐसे कुछ पेन हो सकता है। एंड आई वो संडे था तो मैंने पेन किलर खा लिया, एज वी ऑलवेज डू, कि कुछ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते या तो ऐसे निकाल देते उस पेन। एंड मंडे आई वेंट टू ऑफिस, आई केम टू थाने, मैंने ऑफिस में काम किया, 9 to 6 का शिफ्ट कंप्लीट करके आई वेंट होम। उस दिन मंडे रात को आई स्टार्टेड वोमिटिंग, बहुत सारी वोमिटिंग हुई। एंड फिर आई वाज वरीड कि वोमिटिंग क्यों हो रही है, व्हाट माइट बी द रीजन।
तो फिर ट्यूसडे को हमने इमीडिएट सोनोग्राफी कराया, हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया जो फैमिली नॉर्मल क्लिनिक में जो डॉक्टर्स होते हैं, फिर शी टोल्ड मी कि आप सोनोग्राफी कराओ। ओके फिर आई वेंट थ्रू द सोनोग्राफी एंड पता चला कि मेरे लेफ्ट ओवरी के अंदर देयर इज वन सिस्ट, एक गांठ है। तो हम लोग को लगा ठीक है, डॉक्टर बोली कि ऐसे ही कुछ मांस का गोला या कुछ भी हो सकता है, तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये ऑपरेट करके ही निकलेगा, मेडिसिन से मेल्ट नहीं होगा, सो यू नीड टू गो थ्रू ऑपरेशन। सो आई वाज वरीड कि डर जाते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, अगर ऑपरेशन बोलेंगे तो फिर अचानक ऐसे। देन आई वेंट टू फर्स्ट ऑपरेशन, मेरा एक ऑपरेशन हुआ जिसमें वो गांठ निकाली एंड बायोप्सी किया। उसमें भी ट्विस्ट ऐसा था कि मैंने जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया था दैट वाज अ ट्रस्टी हॉस्पिटल, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बाहर से आते थे। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, देयर वर 8 स्टिचेस, मैं डिस्चार्ज हो गई एंड आई जॉइंड ऑफिस। तो जो रिपोर्ट्स थे मेरे वो लेटर हम लोग को बाद में मिले, तो वो रिपोर्ट्स निखिल ने लाके ऐसे घर में रख दिए। वो रिपोर्ट्स में क्या था वो हमें नहीं पता था। आई जॉइंड ऑफिस फॉर 2.5 months आई कंटिन्यू। मेरा सेकेंड जुलाई 2017 को ऑपरेशन हुआ था। आई कंटिन्यू टिल नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैंने कंटिन्यू किया। देन फिर अचानक से मेरे बाबा एडमिट थे, तो मैं मम्मी के पास गई थी। तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैंने सुना दीपिका कुछ ऑपरेशन हुआ था, क्या हुआ, वेयर आर द रिपोर्ट्स। तो मैंने उनको ऐसे ही मेरे मोबाइल में जो सॉफ्ट कॉपी था उन्हें दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि बैठो 1 मिनट। तो मैं बैठी, तो बोले पक्का आपके रिपोर्ट्स है? मैंने बोला हाँ। तो ही सेड मी कि आपको कैंसर है। आई वॉज लिटरली आउट ऑफ माई माइंड कि मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और मेरे बाबा बाहर थे, उनको सलाइन लगाया हुआ था, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं बाबा को, ये ऑफिस में था निखिल, एंड मैं बाबा को बता नहीं सकती थी कि ऐसे मतलब उन्होंने बोला है कि कैंसर है। एंड कैंसर सुनने के बाद मुझे लगा अभी सब खत्म हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे को आरवी का चेहरा दिखने लगा, निखिल दिखने लगा, क्योंकि एक ही साल हुआ था, सब अच्छे से चल रहा था और अचानक ये आ गया। कि फिर मैं बाबा को बोली कि मैं 10 मिनट्स में रिटर्न आती हूँ। एंड फिर मैं वहां से आई के यहाँ पे गई। मेरे आई के यहाँ पे मंदिर है नीचे, शंकर भगवान का मंदिर है। मैं वहां पे बैठी एंड लिटरली आई वाज शाउटिंग कि मैं रोने लगी। मैंने निखिल को कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। फिर निखिल बोला तू निकल वहां से। फिर निखिल और मैं मिलके घर पे गए एंड नेक्स्ट डे हमने जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट किया। तो उनको भी यही लगा कि मुझे एश्योरिटी है कि आई एम अ कैंसर पेशेंट। और उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि 2 कीमोथेरेपी होंगे, एक सर्जरी होगी, अगेन 2 कीमोथेरेपी होंगे। तो आई वाज शॉक कि फिर से ऑपरेशन होगा। एंड कीमोथेरेपी के बारे में सुन के आई वाज कि मैंने सुना था कीमोथेरेपी में कितने चैलेंजेस होते हैं, पूरे हेयर लॉस हो जाएगा एंड बहुत सारी चीजें थी। तो मैं बहुत रोने लगी थी, 1.5 घंटा मैं हॉस्पिटल में रो ही रही थी निखिल को हक करके। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये डिसीज मुझे हुआ है करके। एंड देन फिर तब से जो टाटा हॉस्पिटल के चक्कर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर, एसएल रहेजा, बहुत सारे हिंदुजा, टाटा, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, सारे हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स ले लेके चक्कर काटे, हर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि एक नहीं, हमने 4 टाइम्स चेक किया कि सच में है कि नहीं है। बिकॉज आई वॉज इन अ बिग क्वेश्चन कि कैसे, 29 का एज था तभी मेरा, 29 के एज में कैंसर होना, वो भी ओवरियन कैंसर, बहुत रेयर केस में होता है। तो इट वॉज कि कंफर्म हो गया सब जगह से कि है, 4th रिपोर्ट में भी कंफर्म आया कि है। So almost for so many months you had the reports. तो इस दौरान आपको कभी कुछ नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब भी मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका नसीब इतना अच्छा है कि आपको इनिशियल स्टेज में पता चल रहा है कि आपको कैंसर है। ओरियन कैंसर 3rd स्टेज तक पता नहीं चलता। एंड अगेन थैंक्स टू निखिल, इसने मुझे बोला योगा करने के लिए, बिकॉज आई एम अ थायराइड पेशेंट, मुझे थायराइड भी है, जो मेरा प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ था। हेलो। Okay. He's my son. I'm sorry. This is a part of motherhood. So I am missing accepting. Give Arvi. me 1 second. Yeah. Sorry, 1 second. You be, I'm in a work. Thank you. Sorry. Yeah. Sorry. I'm really sorry. नहीं, इट्स ओके, डोंट बी सॉरी रे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, थायराइड था, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट तभी मुझे थायराइड हो गया। थायराइड एट टाइम इट वाज डिटेक्टेड, बट मुझे ये नहीं पता था कि थायराइड की टैबलेट लेनी होती है।
आई वॉज लाइक कि थायराइड एक नॉर्मल छोटा मोटा कुछ डिसीज है एंड इट विल बी लाइक निकल जाएगा ऐसे. एंड जो मेरा डिप्रेशन था, मेरे डिवोर्स केस में मैंने बहुत सारा डिप्रेशन में मैं गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे केस सॉल्व नहीं हो रही थी. आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम. मैंने शायद स्किप किया, मैंने खुद का काउंसलिंग भी कराया एनजीओज में जाके. फाइनेंस तो था नहीं, बट फ्री एनजीओज में जहाँ पे काउंसलिंग होता है, मैं डिप्रेशन, क्योंकि मुझे आर्मी को देखना था, मुझे वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने खुद का काउंसलिंग कराया. राधिका मेरी काउंसलर थी, वो इतनी अच्छी थी कि शी मोटिवेटेड मी. मैं जो भी आज पॉजिटिव हूँ, काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट मैं उसमें से निकलने के लिए. बहुत सारे एनजीओ है जो हेल्प करते हैं. फिर उसके बाद मुझे निखिल ने हम थायराइड के जो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए, तो डॉक्टर ने बोला कि जो थायराइड का लेवल TSH का 5 होना चाहिए, इट वाज मोर देन 1000 इन माय केस. ओके. तो थायराइड की वजह से फिर मेरा इम्यून इफेक्ट हुआ, उसके वजह से फिर मुझे कैंसर हुआ. एंड देन फिर जब भी हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला योगा करने की वजह से जो सिस्ट है वो ट्विस्ट हुआ. मैं जब भी झुकती थी नीचे तो मुझे लेफ्ट साइड में पेन होता था. ओके. मेरी योगा ट्रेनर बोलती थी कि आपको आदत नहीं है, आपने बचपन से एक्सरसाइज नहीं किया, योगा नहीं किया, इसलिए आपको पेन हो रहा है, तो आप ट्राई करो और स्ट्रेच करो और प्रेशराइज करो खुद को. तो मैं जबरदस्ती जब भी करने लगी तो वो जो सिस्ट है वो हिल गया, थोड़ा सा ट्विस्ट, तो मुझे पेन स्टार्ट हुआ. तो Oh, 7th so to 8th when डे. you have a thyroid, तो आपने thyroid की दवाई, because I know thyroid में my husband has thyroid, so you have to हाँ. take a medicine every morning. So आप लेते थे वो? नहीं, तभी नहीं लेते थे, क्योंकि मुझे पता ही, जब भी मेरा प्रेगनेंसी का था तभी मुझे मेडिसिन दिया गया. एंड बाद में मैंने रिपोर्ट्स निकाले तो इट वाज नॉर्मल. लेकिन Okay. उसके बाद में फिर से वो टेंशन एंड इसकी वजह से फिर से वो डिस्टर्ब हो गया, T3 T4 TSH सब इम्बैलेंस हो गया. एंड तभी मैंने चेक नहीं कराया था, Oh. क्योंकि थायराइड से ऐसे मुझे कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे कि कुछ जैसे थायराइड से रिलेटेड, तो मैंने कभी चेक ही नहीं कराया. दैट्स द Right. रीजन वो बढ़ गया. फिर उसके बाद में मुझे जैसे बोला कि केमोथेरेपी लेना होगा, ऑपरेशंस करना होगा, तो आई वाज, फिर से मुझे प्रिपेयर करना था खुद को. एक ऑपरेशन से मैं निकली थी, मैं कंप्लीटली फाइन हो गई थी ऐसे लगा. फिर सेकंड ऑपरेशन के लिए फैमिली को भी प्रिपेयर करो, आरवी को भी बोलना पड़ता था कि मैं अभी एडमिट होने वाली हूँ, मैं नहीं रहूंगी कुछ दिन घर पे, तू आजीला त्रास नको देऊ, तू किसी को परे, क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत He must मस्ती be कर. 5 or 6 year old, right? That येस time? येस येस येस. Yeah. तो आई वॉज लाइक कि तू, मम्मा नसणार आहे तुझ्या जवळ, मम्मा नहीं रहने वाली, पापा रहेंगे, तू ये करना. तो फिर एट दैट टाइम उसने भी बहुत सपोर्ट किया, आरवी ने, मेरी मॉम इन लॉ ने उसको बहुत अच्छे से संभाला. इतना था कि मैं मेरी मम्मी के घर पे नहीं गई, मैं यहीं पे थी, मेरे इन लॉज के साथ ही थी. मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई कि मी आईकडे जायला हवं ऐसा. मतलब मम्मी की याद तो थी, मम्मी पापा आते थे मेरे, आई बाबा आते थे यहाँ पे. एंड देन फिर थर्ड ऑपरेशन के लिए मैं एडमिट हुई. मेरा सेकेंड ऑपरेशन में मेरी जो लेफ्ट ओवरी है, सिर्फ ओवरी निकाली गई. तो Okay. It was ओवरी निकाल, removed. Okay. यस, ओवरी, लेफ्ट ओवरी वाज रिमूव्ड एंड इट वाज कंप्लीटली ब्लैक फ्रॉम इनसाइड. अंदर से जो ओवरी है पूरी इन्फेक्टेड थी, जिसमें वो सिस्ट था. तो फिर वो टाटा हॉस्पिटल में भेजे गए. फिर मेरे टाटा के चक्कर, लिटरली हम लोग दोनों सुबह 5:30 को निकलते थे, 6:30-7 o'clock को हॉस्पिटल पहुंचते थे, एंड 3-3 बजे तक हमारा नंबर ही नहीं आता था दोपहर के. हम लोग ऐसे ही बैठे रहते थे. और इतने सारे पेशेंट्स वहां पे मैं देखती थी ना, मैं गॉड को वही बोलती थी कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मैं अच्छी खासी हूँ. मतलब इतने केसेस देखे ना मैंने, नाक में नली इधर बैंडेज, बहुत बहुत वर्स्ट केसेस मैंने टाटा में देखे. आई वाज लाइक कि मैं सच में मैं बहुत नसीब वाली हूँ. मतलब बहुत पुण्य रहेंगे सबके जो मैं थी अच्छे से. फिर मैंने कंसल्ट किया तो मुझे कीमो नहीं बोला कि Okay. बट मुझे सर्जरी बोली, तो मेरी सेकंड, फिर और मुझे नेक्स्ट टाइम थर्ड सर्जरी भी बोला कि Third, but your ovaries were removed in the second यस, surgery, ओवरी right? वाज रिमूव्ड, बट डॉक्टर ने बोला कि स्प्रेड होने के चांसेस है. Even if ovaries is removed, it can यस be. यस, क्योंकि वो Is ब्लड it? में होता है. कैंसर जो होता है यूट्रस हाँ मध्ये हाँ. यूट्रस में स्प्रेड होता था, एंड अगेन इट विल बी लाइक होल बॉडी के लिए. तो जो CA-125 ब्लड टेस्ट होता है उसका लेवल 24 to 25 होना चाहिए ऐसे बोला था. तो माइन वाज 91, Okay. CA-125 का लेवल.
तो फिर मेरा फिर से मुझे खुद को प्रिपेयर करना था। सेकंड ऑपरेशन तो गया, पहले ऑपरेशन में 8 स्टिचेस, सेकंड में 15 स्टिचेस हुए थे। एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड ना दैट वाज लॅप्रोस्कोपिक था, ते म्हणतात ना दुर्बिणीने करतात Yeah, I छोटे know, I छोटे know. होल, तो इट Right. वाज लॅप्रोस्कोपिक, बट माय थर्ड सर्जरी वाज अ ओपन सर्जरी। तो उसमें Oh my God. पूरा मेरा ऊपर से नीचे तक पेट काटा हुआ है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो देयर वर 29 स्टिचेस इन टोटल एक ऑपरेशन। 29 stitches. And oh my God. तो मेरा तो दैट वाज वेरी, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि इतना मेजर होने वाला है। एंड फिर मेरा यूट्रस कंप्लीट निकाल दिया, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज सब निकाल दिया। एंड फिर थोड़ा मेरा फॉलोअप था, मेडिकेशंस थे, आई कंप्लीटेड दैट। एंड बाय गॉड ग्रेस अभी जो मैं हूँ आपके सामने। फिर I मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। एक्चुअली मैंने, मेरा ऑफिस था, तो मैं ऑन पेपर ट्रेनर नहीं थी, बट आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग्स। जो नए बैच आते थे उनका प्रोसेस ट्रेनिंग, सिस्टम ट्रेनिंग्स एंड ऑल लेती थी। एंड मेरा कुछ कहीं तो प्रमोशन रिलेटेड कुछ होने वाला था, बट बिकॉज मैं ऑफिस नहीं गई तो मेरा अप्रेजल नहीं हुआ एट दैट टाइम। तो मुझे वो चीज बहुत हॉन्ट करने लगी थी कि, तो फिर मैंने बाद में जॉब छोड़ दिया एक्चुअली, एंड आई स्टार्टेड माय ओन फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट का जो काम है वो। Okay, wow. Yes. So even now when you had told me a little bit about your life journey, तभी भी मेरा ऐसा ही था कि I was literally numb for a second कि मैं क्या बोल रही हूँ. Even now when I know in detail, it is still the same. I'm literally like, hats off to you. And 3 surgeries, and it's I know Tata Memorial Hospital. I just visited once in my life, and not in a bad way, but I would never ever have that guts to go there because I've seen Actually, small किसी को मैं तो babies से विश लेके करती हूँ किसी पे वो नौबत ही नहीं आए कि वो हॉस्पिटल विजिट करने, क्योंकि मैं वहाँ पे 8-8 घंटे वेटिंग में रुकती थी। एंड आजू बाजू में सारे पेशेंट्स होते थे, मतलब वो माहौल ही किसी के भी नसीब में नहीं आए कि वहाँ जाना हाँ. पड़े किसी भी चीज के लिए ऐसा। No, I know, I agree with you. So it's been like, I think आपका थर्ड ऑपरेशन कौन से ईयर में हुआ? 2018. 2018 में हुआ। 18. यस Okay. यस। So from after that. फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन जो मेरे थे, मतलब मेरा जो सेकंड ऑपरेशन था वो 15 दिसंबर को हुआ, एंड सेकंड फेब को थर्ड ऑपरेशन हुआ। तो गैप भी बहुत Okay. कम था, मैं जस्ट इसमें से रिकवर हुई थी। एंड अगेन मुझे खुद को मेंटली, फिजिकली तो था ही था, बट मेंटली इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं फिर से खुद को प्रिपेयर करूं। तो फिर मैंने फिर से खुद को प्रिपेयर किया। एंड थैंक्स कि मेडिक्लेम था, अगर किसी के पास मेडिक्लेम नहीं होता और ये सारी सिचुएशन होती तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। निखिल इज वर्किंग विद टीसीएस का मेडिक्लेम TCS. इज Okay. एक्चुअली वेरी गुड। मुझे कैंसर का कैश बेनिफिट भी मिला हमें। एंड Okay. मेरा जो भी हॉस्पिटल का था वो भी अच्छे से कवर हुआ। Okay. Yes. Wow. उसके That's बाद sweet. का उसके बाद का आपने पूछा राइट, करुणा? उसके Yeah. बाद So how 1 second, just 1 second. Yeah. No, I was asking you. So after these major operations that you have gone through, so after that, how did your body cope up with everything? And your, I know because जैसे आपने कहा कि आपकी mother-in-law who was the biggest support, she was taking care of RV. इनफैक्ट मुझे याद है जब हमने ये पहली बार आपने मुझसे बात की थी, आपने बोला था उनका स्कूल तक उन्होंने कभी मिस नहीं होने दिया. She was taking care yes. of her like anything. So what I understand is it's very important how much your family also supports you, because आप already Yes. आप खुद इतने बीमार हो, पेन में हो, लेकिन उस टाइम पे I think family भी बहुत affect होती है. But your Yes, family is really strong to support you in a very strong way. So that is, Nikhil, hats off to you, because this and your mother and your parents, because they are really a huge supporter in this way. So Deepika, how did you cope up with after the surgery thing? Your body might have become very weak, right? yes. वन एक्चुअली मैं पहले से बहुत ही वीक थी। यू विल नॉट बिलीव, जब मैं प्रेग्नेंट थी थर्ड मंथ में माय वेट इंक्लूडिंग बेबी वाज जस्ट 36 kg। 36 kgs 36 include. kg थर्ड मंथ। तो डॉक्टर ने मुझे लिटरली बोला था कि अगर आप वेट गेन नहीं करोगे तो बेबी एबनॉर्मल होने के चांसेस है। तो जो 6 मंथ मैंने मेहनत किया होगा ना, मैं सच में तभी मेरी मम्मी थी, आई
की वजह से, मतलब मम्मी जो है मेरी आई, उसकी वजह से मेरी आरवी जो भी है हाइपर एक्टिव, जो भी एक्स्ट्रा एबनॉर्मल तो नहीं कुछ अलग ही है। तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये वैसे था करके तभी ऐसा। Wow, that's so तो sweet. उसके जब ये ऑपरेशन करके मैं घर पे आई, तो एक्चुअली मैं कंप्लीट ऐसे ही सोती थी, नो लेफ्ट नो राइट, क्योंकि पूरे पेट पे स्टिचेस थे मेरे Exactly, yeah. और पूरा बैंडेड था, पूरा ऐसे जख्म था पूरा ऊपर। तो मुझे वॉशरूम के लिए प्रॉब्लम होती थी, सोने में प्रॉब्लम होती थी। आवाज आ रही है क्या करो ना? आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मैं ये बोल रही थी कि मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी, मैं बैठ के खा नहीं सकती थी क्योंकि पेट पे पूरे स्टिचेस थे, तो बैठने में तकलीफ होती थी। वॉशरूम के लिए भी, तभी घर में इंडियन टॉयलेट था, तो मैं बैठ के वॉशरूम के लिए बहुत तकलीफ, मतलब ये सबसे बहुत चैलेंजिंग था। खाना खाने के लिए बैठने तक की मेरी ताकत नहीं थी, एंड कम्प्लीटली मैं बेड पे थी। एंड फिर धीरे धीरे जो मेडिसिन थे वो कंप्लीट हुए, फिर मैं बेड से उतर के धीरे धीरे चलने लगी। मैं चल भी नहीं रही थी, कंप्लीट बेड पे सो ही रहती थी। धीरे धीरे फिर मैं चलने लगी, बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली, चलते चलते धीरे धीरे ऐसे। मैं बहुत दिन घर में ही थी, बेड पे ही थी, बिकॉज इट वॉज अ मेजर ऑपरेशन। Exactly, yeah. यस, बहुत मेजर था। एंड देन फिर धीरे धीरे हेल्थ वाइज मुझे तभी कुछ चैलेंजेस नहीं लगे, बट अब 1.5-2 साल में तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मुझे दम लगने लगता है, ज्यादा बातें करूंगी तो दम लगता है। एंड आई फेस चैलेंजेस विद माई जॉइंट पेन्स, बहुत जॉइंट पेन्स होते हैं, वीकनेस है, बोन्स बहुत कमजोर हो गए, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। और नजर भी अभी स्टार्ट, डॉक्टर ने जैसे बोला था कि ऑपरेशन के 4 to 5 years बाद चैलेंजेस फेस होने लगेंगे, जैसे आंखों की नजर जो है कम हो जाएगी। बट अभी भी मुझे फ्रॉम लास्ट 1 to 2 months मुझे ऐसा लगता है कि दूर की चीज जो मुझे क्लियरली दिखती थी वो नहीं दिख रही। और मेरा स्टेमिना बहुत कम हो गया है, पहले से स्टेमिना मेरा बहुत कम हो गया है, ऐसा। निखिल, what would you say? How was your? I know दीपिका तो obviously वो पेन और वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है फिजिकली जा रहे थे, बट at the same time being a husband and also a father and a son, how did you tackle and be a strong support? How did you feel that? एक्चुअली मेरे लिए तो ये सब फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि मैंने ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में कभी फेस नहीं किया था। सो मैं बहुत ही कोलैप्स हो चुका था जब भी मुझे पता चला कि उसको कैंसर है करके। सो मैं बहुत, मतलब एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। तो मैं उसके सामने तो ऐसे कभी दिखाता नहीं था, बट जब भी अकेला रहता था, सोचता था, तो मुझे रोना भी आता था। अभी भी वैसे ही फील हो रहा है। You can, don't worry. Nobody's. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मम्मी पापा को संभालना, फिर आरवी को संभालना, इसको संभालना, प्लस फाइनेंशियल उतना था नहीं। अभी कैसा है, मेडिक्लेम भी रहेगा तो भी आपको खुद से थोड़ा खर्चा भी करना होता है, और उसका एक एक टेस्ट का कॉस्टिंग 20-25,000 30,000 तक जाता था। एक मेरा एक गॉड्स ग्रेस, मैं फोटोग्राफर हूँ, तो तभी सीजन चालू था, तो मुझे वेडिंग के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो फिर वैसे मेरा पैसा निकल जाता था, तो वो मेरा चालू था। प्लस मैंने 4 to 5 months का टीसीएस से लीव भी लिया था, तो लीव भी मुझे मिल गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन से। वो भी पेड लीव था, तो सैलरी आता था, और प्लस ये काम चालू था, तो फाइनेंस उधर मैनेज हो गया। बट अगर मॉरल सपोर्ट आप दुखी देखोगे, तो मॉरल सपोर्ट मेरा तो था ही उसके साथ, बट उसका जो विल पावर था ना, वो उससे भी ज्यादा था। तो उसके विल पावर से मुझे ज्यादा और ताकत, तो मोर ऑफ 80% उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था, 20% मेरा इमोशनल के पावर पे ही वो ठीक हुई है आज तक। मतलब जो भी उसने जो भी फेस किया है, सब उसका विल पावर ही है। मेरा तो सपोर्ट उसको हमेशा ही था, अभी भी है, और उसको इन फ्यूचर भी हमेशा, मैं हर एक चीज में उसको सपोर्ट करता हूँ। उसको लेके जाना, जनरली अभी हम लोग कैसे कि ऑपरेशन था तो बाइक था, तो बाइक पे ट्रेवल करते थे, ट्रेन में तो नहीं लेके जा सकते, क्राउड क्राउड रहता है, तो वो स्टिचेस वगैरह इधर उधर किसी का गलती से धक्का लग गया, तो बाइक भी एकदम संभाल के लेके जाता था मैं, अराउंड 30-40 के स्पीड पे। तो वो बहुत चैलेंजिंग था वो टाइम पे। वो 6 months मेरे लाइफ के बहुत चैलेंजिंग And I can see that even now your expressions and your eyes,
I can actually see how much you have supported and how much it has been difficult for you too. क्योंकि ये लाइफ मेरी लाइफ की भी जर्नी ऐसी रही है कि कुछ ना कुछ मेरी फैमिली में होता रहता है. सो आई नो एज अ फैमिली मेंबर, हम भले मैं बीमार नहीं हूँ या मुझ पे कुछ नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पे उस फैमिली मेंबर को सपोर्ट करके खुद को भी सपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता है. लुकिंग Right, एट, right, right, right. so it's really commendable that the way you supported her, and you guys are really very sweet. You know, I'm feeling very nice that, and I'm getting really motivated because usually people say, "Yeah, you are very motivating, Karuna." But I feel, you know, when I meet people like you all, it really motivating. It's very inspiring. Thank you, And thank you. you are, Nikhil, one of an inspiration to many men who actually do not value or do not feel that it is their responsibility as well when a wife is going through so much. And even taking care of your wife, taking care of RV, आपको तो RV का भी ध्यान देना था उस time पे. Yes, right, So right. you are really inspiring person. I am really glad that I'm talking to you guys. Really very Thank you, sweet. Karuna. And जस्ट एड ऑन just कीजिए करुणा, दो चीजें निखिल के लिए मैं ऐड करना चाहूंगी इस चीज में, मतलब स्पेशली लोगों को पता होनी चाहिए. निखिल का कैसे था, अगर इंजेक्शन देखे या ब्लड थोड़ा सा भी देखे तो वो अनकॉन्शियस तुरंत हो जाता था, हाँ, मैं चक्कर, बेहोश हो जाता हूँ. ये मेरा हाल होता था. किचन में लिटरली कुछ थोड़ा सा नाइफ भी लग गया थोड़ा सा और खून दिखा ना तो वो एकदम मुझे चक्कर आ जाता है. चक्कर आ जाता था. लेकिन जब उसको पता चला कि दीपिका को मैं Okay. वो Again, this इतना makes स्ट्रॉन्ग किया ना, ही वाज स्टार्ट टू एंड मेरे साथ था. हर चीज में उसने भागा दौड़ी की. और जो मेरा थर्ड ऑपरेशन, जो मेरे ऑर्गन्स अंदर के निकाले हुए थे, उन्होंने ऐसे बॉटल्स में दिए थे, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में. ये खुद लेके गया टाटा हॉस्पिटल. उसने डॉक्टर के भरोसे नहीं रहा. मैं वो बोला कि मैं इमीडिएट, मेरा जैसे ऑपरेशन हुआ वैसे वो सारे ऑर्गन्स जो मेरे निकाले हुए थे वो खुद निखिल लेके गया ताकि रिपोर्ट्स आने में डिले ना हो. तो वो लेके गया, रिपोर्ट्स भी लेके आया. तो ये उसकी एक चीज मुझे बतानी थी कि मतलब उसने बहुत, एक बार मैं ऐसी नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए गई थी तो इसको चक्कर आया, मैं इसको पकड़ के बाहर ला रही थी. डॉक्टर बोला पेशेंट कौन है, मैंने बोला मैं हूँ. तो बोल रहे इनको क्या होगा. तो वो स्टेज से लेके इसने इसको खुद में इतना स्ट्रॉन्ग किया इसकी वजह से. और दूसरी बात ये थी कि हमारा सेकेंड मैरिज था एंड 1 साल में ही मुझे इतनी बड़ी डिसीज मतलब हो गया. तो आई वाज कि मेरे इन लॉज क्या सोचेंगे, मतलब बोलेंगे सेकंड है, पहला चैलेंजिंग था वो गया, अभी सेकंड में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम. तो मुझे बहुत टेंशन था कि वो क्या सोचेंगे, विल दे सपोर्ट मी और नॉट. उनको पता चलेगा तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन. लेकिन सच में जितना मतलब माँ बाप करते हैं ना, सेम उतना उससे ज्यादा ही किया उन्होंने. बहुत केयर ली. मतलब मेरी मॉम इन लॉ बोलने को भी नहीं अच्छा लगता. आई ने ना ऐसे बेड पे सारी चीजें लाके दी मुझे, हर एक चीज का. आरवी का भी ध्यान रखती थी. अभी उन्होंने दोनों लड़के, निखिल एंड उसे एक छोटा भाई है सुशांत. तो कभी बेटी नहीं थी तो पोनी बांधना तक डिफिकल्ट था, बट आरवी की पोनी बांधने से लेके उनको बहुत चैलेंजेस आए. तो लेकिन वो करती थी. उन्होंने बहुत किया मेरे लिए भी, आरवी के लिए भी. मतलब सच में मैं और मैं मानती हूँ कि जो मेरा पहला शादी होके मेरा डिवोर्स हुआ, मैं सिर्फ मुझे मातृत्व मिलने के लिए, मैं एक माँ बन सकूं शायद इसीलिए वो जो भी हुआ वो हुआ था. आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि अगर वो पहली शादी नहीं होती तो मैं माँ नहीं बन सकती थी. आज डेट ऑफ, अगर मैं 28 29 में जो हम शादी करते हैं, आज का जो जनरेशन है हमारा, अगर मैं उसमें शादी करती तो मैं आज के डेट में माँ नहीं बन सकती थी. because of the ovaries Yes, thing and yes, all you right अभी आई right कांट बी मॉम एनी मोर. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आरवी 10 के बराबर है. no, this is a very beautiful thing. मैं actually एक क्वेश्चन पूछने वाली थी जिसका आपने खुद ही मुझे जवाब दे दिया. बिकॉज बहुत बार होता है ना कि हम लाइफ में ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों. बट when I spoke to दीपिका, ये सवाल उन्होंने कभी मतलब लगा ही नहीं मुझे कि उनको ये सवाल आया है. इनिशियली ऑब्वियसली उस टाइम पे आप बहुत रोए हो, इट इज ऑब्वियस. But today she has a very positive mindset and she says जो मेरे साथ हुआ it's fine because I needed RV that time. My first marriage broke but I got a daughter because of that and she's very positive about it कि आज शायद मुझे नहीं बेबी हो सकता इसलिए पहले ही मेरे साथ ये हो गया. So that's the reason my first marriage didn't work but I got a baby.
So the way of looking at things, your perspective towards things is very very positive, which is I think many people should learn, because बहुत लोगों का ये जो होता है ना, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज में क्यों ढूंढते हैं, कि क्यों मैं, मेरे साथ ही क्यों, हर चीज में हम सवाल बहुत रखते हैं, rather than accepting things and understanding कि just accept it. And I think it's not easy also to do as a human being. We are सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है ना, जैसे लोगों का जो सोचना है, जैसे मैं सिंगल मॉम थी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट अगर आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंस हो ना कि यस आई एम अ सिंगल मॉम, और जो भी हुआ मैंने exactly. जानबूझ के नहीं किया, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर आप डर गए, या अगर आप खुद में कुछ कमी नहीं, आप अगर आपको लगेगा मेरा डिवोर्स हुआ, मेरी गलती है, मेरा कुछ उसमें नेगेटिव चीज है, मैंने कुछ गलती की, तो आप खुद को ब्लेम करोगे तो दुनिया भी आपको ब्लेम ही करने वाली। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तो नोबडी हैड द गट्स टू फिंगर यू टू क्वेश्चन यू कि क्यों ऐसे, क्यों ऐसे। अभी भी मैं जब भी हमारी शादी हुई तो निखिल को थोड़ा सा रहता था कि सेकंड मैरिज है कैसे। मैंने बोला प्राउडली बताना चाहिए कि हमने Exactly. एक चीज से बाहर निकल के वी स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, वो भी इतनी अच्छी लाइफ है, वी शुड प्राउडली शेयर। मुझे बहुत प्राउड Exactly. फील होता है बताने में कि मेरा सेकंड मैरिज है एंड आई एम हैप्पीली एंड अच्छे से, बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड हो सकते हैं फर्स्ट And this is अगर हुआ है। actually a very support, very strong thing to say, because there are many women, even men. I'm not saying talking only in a one gender based thing, but I have seen that men and women, many people go through a lot in their married life, but they are so scared of the society that they can't take a step for themselves, और वो पूरी life को घुटन से जीते झेलते हैं। रहते हैं। And some, your story and the way you guys, even after marriage, the way you guys faced all the obstacles and literally came out of everything with like a victory. So it's very you should actually share with everybody, and that's the reason I am going to share this with everyone, because this is going to help many women. Trust me, Nikhil, I'll tell you one thing. I run a group for women, but I do have a lot of respect for men as well. मेरे ग्रुप का नाम भले extraordinary है, but I always believe बिना कोई नर के नारी भी अधूरी ही है. We always need. My husband is also one of those nar who's very supportive. But in our group we have so many females who have who are going through a lot, and somewhere some people also have a story where they want to break a relationship and go out of come out of it, but they don't have that kind. They think Courage. about they don't have courage, and they think about other people, society and all. But somewhere I feel people like you, when they come and share that this step is not wrong and nobody has rights to even question you, it is your life. Yes. I think this is very important to share. You never know कितने लोग आपसे इंस्पायर होके उनमें वो हिम्मत आएगी कि वो भी अपने लिए कुछ स्टैंड ले पाए. So commendable, seriously commendable. And I'll ask you one question quickly. We have this set of questions that we share, ask everybody in whoever we interview. So I just quickly will ask you. You have shared a wonderful story of your life, Deepika. I won't say this is a story of only Deepika. This is Deepika and Nikhil's story. So I would take it that way right now. So it's a wonderful story. I just, I have a few questions here. Quickly, I will ask you. So, what do you think? Yeah, what about you? Do you think can motivate others? I feel there are many things, but what do you want to motivate others बीइंग with? पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव इज द मेन थिंग। जो भी होता है हमें उससे हर चीज का ना पॉजिटिव तरीके से उसको हमारी तरफ लेना है। आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो, आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो हर एक चीज में मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव चीजें ही ढूंढो। बी पॉजिटिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी डेस्टिनी मजबूर हो जाएगी आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव करने के लिए। दैट्स माय मेन गोल। That's so sweet. And what is the quality in you that makes you extraordinary? Again the same, I am very much positive towards each and every aspect of life, एंड वही चीजें मुझे लगता है कि मेरे में स्पेशल है कि कोई भी चीज जैसे कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को पीछे छोड़ के अगर हम आगे आ सकते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ माय पॉजिटिव थॉट्स एंड माय विल पावर। जो भी है हमें खुद में बिलीव करना है। आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं बहुत कुछ आगे करना चाहती हूँ और मैं करूंगी। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स भी है एंड मुझे पता है कि वो फुलफिल होंगे आज न कल ऐसे। So what is your this brings me to to our next question. So what is your current or your future plans? Currently I am a freelancer makeup artist. My future plan is opening my own salon and a bridal studio. Especially my focus is for makeup.
So Okay. I run a small academy, you can say, at my own house, but I'm planning to have my own salon. So that's my future plan. I want to be a famous makeup artist. I'm sure you will be, and you look so beautiful. You have such a beautiful attitude towards everyone in your life. So obviously, makeup is all about making people beautiful. So you're going to do Yes. that. I'm sure it's going to be great. And Nikhil, I want to ask this question to you. Usually, this is for our naris, but this I'll ask you because Deepika के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं. This is for you. What is your mantra of life? अगर आपको किसी को कुछ बोलना है लाइफ में, ये चीज की वजह से ये लाइफ मेरा ऐसे मैं जी रहा हूँ, व्हाट वुड बी योर मंत्र ऑफ लाइफ? सी मेरा जो मंत्र है, आपको जो अच्छा लगे ना वो करो, लोगों को मत सुनो। मैं तो आज तक वही वही करता आया हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते अरे लोग तुझे क्या बोलेंगे, तेरे चाचा चाची मामा मामी क्या बोलेंगे। मैं बोले मैंने उनके भरोसे नहीं खुद को बड़ा किया है, आपने मुझे बड़ा किया है। जो भी सिखाया है आपने सिखाया है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं हमेशा करता हूँ। मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स मतलब मम्मी पापा की या फिर फ्रेंड्स की एडवाइस लेके करता हूँ, बट ऐसे नहीं सोचता कि बाबा सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी या फिर क्या एग्जैक्टली. करना चाहिए। तो मेरा मंत्र ये है कि आपको जो अच्छा लगे ना लाइफ में वो करो, बट वो अच्छी चीज होनी चाहिए ना कि बुरी। Okay, लाइक दैट। great. That's sweet, and I think this is what you have been doing, and that's how you both are able to cope up with all the difficult situation of life. That's so sweet. Now here I will, Deepika, ask you quickly about our our group actually. So tell me if in Extraordinary, there are many women. It's a group for naris, but also we have their families who look at every activities and everything going on in the group. So if you want to share any thought, anything about the group and to the group members, what would that be? द फर्स्ट थिंग कि मुझे इस ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल फील होता है. आई कैन बी माई सेल्फ, जो मैं हूँ मैं उस ग्रुप में हो सकती हूँ. एंड सेकेंड चीज, बहुत ही फ्रेंडली है सारे लोग. अगर एक भी हेल्प के लिए मैसेज डालू तो जितना एक्सपेक्ट करो उससे ज्यादा रिप्लाईज आने लगते हैं. सारे लोग पर्सनल में भी बोलते हैं कि ये है, ये मैसेज किया था, यू नीड हेल्प. इवन बहुत मतलब जो लेडीज जो अप्रोच है ना एक दूसरे के लिए, दैट इज वेरी पॉजिटिव. किसी को हम जज नहीं करते. और हम जो बीच में जो चीज आपने रन की थी. Got a network cut here again. Okay, I'm sorry, we got cut. Sorry, you said बीच में जो चीज रन की थी वहाँ पे कट हाँ, हो गया. तो जैसे हम फोन करके अगर हमें हमारा दिल हल्का करना है, दैट वाज Extra miles. और बहुत टच कर गई थी कि लाइक कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि कोई कोई चीज हम हमारे बेस्ट फ्रेंड से या हस्बैंड से नहीं शेयर कर सकते. ऐसा कोई चाहिए जो हमें जज नहीं करेगा, जिसे हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन हम हमारी चीजें शेयर कर सके. वो चीज बहुत अच्छी लगी थी. एंड इस ग्रुप में ऐसा है कि सारी चीजें हैं. मतलब पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं, प्रोफेशनल है, एंटरटेनमेंट है, पार्टिसिपेंट है, मोटिवेशन है, बहुत सारी. मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं. So, जो एंड दीपिका ने कहा, I think you were referring to Extra Miles, which is a helpline, a kind of a helpline that we have started in Extraordinary. कि किसी को Yes. भी अगर कुछ भी अपने बारे में शेयर करना है, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई दुख या कोई टेंशन, you can just ping us on our number. आपको कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछेगा और हम आपको सिर्फ सुनेंगे. We will try to guide you, but we'll listen. So it's a place where you can vent out anything that you want. So I think this is Extra Miles के बारे में आप बात कर रहे हैं. Thank you Yes, so much. Extra Thank you. इतनी सारी चीजें ना करूँ ना कि मुझे पर्टिकुलर एक्चुअली नाम याद नहीं रहते. बहुत सारे कुछ ना It's कुछ okay. एक्टिविटीज रन होते रहते हैं. तो बट मुझे इतना याद है कि जहाँ पे हम रो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सारी चीजें. अगर हमें कुछ मतलब कोई सुनने वाला है जो हमें जज नहीं करेगा. Right. ऐसे मैंने कभी कोई ग्रुप में नहीं देखा है. इवन फेसबुक पे मैं दूसरे ग्रुप्स में हूँ, लेकिन ये ग्रुप की ये खासियत मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. That's so sweet. And that, thank you so much, Deepika, for bringing that point here. I am really grateful because we plan things as a group member, as a founder of the group and my team, we plan things. But ये प्लानिंग तभी एग्जीक्यूट होती है और तभी सक्सेसफुल होती है जब मेंबर्स उसको उतना ही अप्रिशिएट करके उसे आगे बढ़ाते हैं. So members like you and many more members in our group, I'm really thankful to all because सबने ये इतना अवेयरनेस क्रिएट किया एक्स्ट्रा माइल्स के बारे में. अभी हमारा वीडियो आया, बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुआ है. So people love that concept, and anybody, really anybody in the world wants to just vent out anything, just ping us. We are there anytime to talk to you and listen to you actually. Thank you so much. Deepika, my next question is,
anything, any one line, if I want to ask you, like, एक one line में बोलो, what is life? Only one line. Yeah, Deepika loves to talk a lot, so that's the reason we give her. This is a challenge for her. कि एक ही line में बोलो अभी. So yeah, Nikhil can say something maybe. Nikhil, what is life? वन स्टेटमेंट में बोलना एक्चुअली थोड़ा मुझे एकदम ऐसे क्या? प्रिसाइज ये चाहिए कि तो निखिल, तो आप सोच लो, निखिल आप बोलो लाइफ क्या है. नॉट लाइक एक छोटा सा सेंटेंस, आपका सेंटेंस बड़ा हो सकता है, नो प्रॉब्लम. हाँ, लाइफ इज लाइक, अभी कैसा है कि हम लोग बीइंग इन अ सोसाइटी लोगों को जज करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए. जियो और जीने दो. अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आपने प्रीवियसली मेंशन किया कि हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि रिलेशनशिप में इश्यूज है, फिर भी लोग कंटिन्यू करते हैं ड्यू टू सोसाइटी एंड ऑल. तो सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम सब मिलके ही सोसाइटी बनती है. तो हमको वही सोचना बंद कर देना चाहिए कि अरे उसका ये हुआ है, उसका वो हुआ. जजिंग बंद करना. सो इट्स लाइक इन सिंपल वन लाइन, जियो और जीने दो. आपको जो अच्छा लगता है ना वही करो बस. ये एक ही लाइफ का मंत्र यही है और यही लाइफ है. बट अच्छी चीजें, बुरी चीजें मत करो. Exactly. Deepika, you want to add something? ना दैट्स इट. बहुत सही बोला उसने. मेरा भी वही है. मेरा एक बस मैं ऐड करना चाहूंगी कि जियो और जीने दो, उसमें जियो ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैंने Right. बहुत लोगों को देखा है की लोग क्या सोचेंगे, लोक का काय म्हणतील, त्याच्यामुळे आपण अर्ध जगतच नाही. That is true. That is true. एक्चुअली हमें लोग हमारी जब तक हम नहीं चेंज होंगे ना, तो सोसाइटी का माइंडसेट भी हम नहीं चेंज कर पाएंगे. तो हमें जीना स्टार्ट करना चाहिए. अगर हमें लगता है कि हम कोई चीज करनी है तो हमें करना चाहिए. जब तक चेंज नहीं होगा तब तक माइंडसेट भी दूसरों का चेंज नहीं होगा. ऐसा है. Exactly, true. And this is very well said by both of you कि yes, geo is very important in this sentence. Right. कि really geo, because हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में लाइफ में बहुत पढ़ते हैं. ये इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. Okay, Right. I really get at times में ना ऐसे I get shut के बस I don't want anybody entering in my space. I am happy and focus on the bigger picture. I believe focus on bigger picture. Correct. Have some goals in life which are for you and the society, and work towards it rather than getting into the other things what world is going to assume things. And ये सारी चीजों में मत पड़ो. Very rightly said. So the interview is done. I really loved talking to Deepika and Nikhil both. I think this is our first time where we took an interview of a couple together, and I really loved it. Though I'm not going to change the group, it will be extraordinary. But it was really lovely having you guys, and to all the people who who heard the whole story. I'm sure you have learned a lot in Deepika's story. It is not only about the cancer, beating the cancer. It is also about a mother raising a daughter alone, giving her own name, coming out of a marriage, getting into a new relationship. So there was lot happened in your life, and everything is something that we all can learn from. Many people will learn. So Deepika, thank you so much. If you want to share any last note, both of you, anything I wanted to actually meet Arvi also, but I think she's not home, right? And I wanted to actually meet and talk to Nikhil's parents, because they are also a very important part in this whole journey. But I think they wouldn't be comfortable. Actually, they are not comfortable. Yes, Yeah, they are not yes, they are not no comfortable. worries. That's absolutely fine. Actually. Any last take on this? Anything that you want to say? Anything about interview, about me, about the world, about you? Anything? Yes. I like to tell you about you, Karuna. Me, okay. First of all, thank you very much. Thank you very much for creating such a good platform for all नारीज. क्योंकि नारीज ये ग्रुप में ऐड होने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो मैंने देखा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद से प्यार करने लगती है और चीजें बहुत पॉजिटिव होते हुए देखी है. एंड आजकल के इसमें लाइफस्टाइल में आप इतने बिजी हो, मतलब मैंने आपका ट्रेनिंग शेड्यूल्स देखे हैं, बैक टू बैक ट्रेनिंग होने के बावजूद भी यू ऑर्गेनाइज दिस ग्रुप वेरी वेल. मतलब ऐसा लगता है फुल फ्लेज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ही काम कर रहे हो लग रहा है. इतनी सारी एक्टिविटीज अरेंज होती है बैक टू बैक कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा गैप ही नहीं आता. तो एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज. हैट्स ऑफ टू यू कि बच्चे को देखना है, फैमिली है,
मम्मी भी है साथ में, भाई है, हस्बैंड है, सबको देख के ट्रेनिंग्स भी लाइंड अप है, उसके बावजूद भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो स्टार्ट करना बहुत इजी है, बट जो आप कंसिस्टेंट आपका परफॉर्मेंस आप मेंटेन रख रहे हो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जो बैलेंस कर रहे हो आप चीजें, हैट्स ऑफ की, मतलब मुझे लगा था नया नया है तो हो सकता है अच्छा है, बाद में फिर वो क्रेज, लेकिन मैंने जब से ज्वाइन किया तब से जो एनर्जी लेवल है चारों एडमिन्स का, जो भी एडमिन्स है एंड यू, वो बहुत हाई लेवल पे है, बहुत आई अप्रिशिएट Thank you दैट अ so लॉट। Thank you so much. So all the audience, thank you Nikhil for being a part of this interview today. I really thank you. Welcome. Thanks Deepika, to you, welcome. And I will definitely be in touch with you guys. I really loved talking to you guys. And if I will feel any time, upset or demotivated in life, definitely I'm going to talk to you guys. Definitely. And you Anytime. will be charging up things. Yes, Thank you just all. And thank you. last thing करुणा, just one last thing, I just clicked. ये भी हमारे रिलेशन से रिलेटेड है, मुझे लगा बोलना चाहिए, अभी खत्म होने के बाद बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। जैसे निखिल और मैं जब मिले थे तब आरवी मेरी लाइफ में थी एंड निखिल के लाइफ में मनस्वी थी। तो मनस्वी का था कि मनस्वी की मम्मी की जब शादी हो जाएगी वो चली जाएगी, तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो मनस्वी को हम लेके आते थे। मनस्वी यूज्ड टू कॉल मी दीपिका मॉम, और यस एंड इसकी जो एक्स वाइफ है वो गुजराती थी, तो मनस्वी बीच बीच में गुजराती भी बोलती थी। और हम, मतलब निखिल ने मुझे स्टेटमेंट बोला था कि डिवोर्स के बाद मनस्वी को मैंने बहुत बार घर पे लाया, बट तू आने के बाद फर्स्ट टाइम वो इतने देर के लिए रुकी है, बिना उसकी मतलब काजल की याद उसने नहीं निकाली। शी इज वेरी कंफर्टेबल, और मनस्वी का और मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। तो जब तक मनस्वी का सेकंड फादर नहीं मिला तब तक हम बर्थडे, आरवी और उसको कपड़े, शूज से लेके सारी चीजें हम ट्रेनिंग करते थे दोनों का। तो ऐसा था। Divorce is not something which is end to a relationship. It yes, is yes, actually. yes. Wow. निखिल अभी भी रोता है मनस्वी की याद निकाल के, बहुत उसको फील होता है कि मैं कभी उसको देख नहीं पाऊंगा, मैं कभी उसको अपनी बेटी करके, क्योंकि अभी वो किसी और को फादर बोल रही है, उसके सामने आएगा तो वो रिलेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस एक उसमें बात थी कि ये मैरिज से बेबी, जब भी मुझे कैंसर नहीं था, तो जब भी निखिल मुझे बुला था उसने मुझे बोला था कि हम दोनों के मैरिज से हम बेबी नहीं ये करेंगे, कंसीव करेंगे। द रीजन कि मैं आरवी के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं क्रिएट करना चाहता। अगर हम दोनों का बेबी आएगा, हाँ हम दोनों का अगर बेबी आएगा तो हो सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा जो ज्यादा प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बेबी के लिए ज्यादा होगा एंड शायद मैं आरवी के लिए कुछ कम ये करने लगूं। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट सिचुएशन। तो वो चीज बहुत मतलब मुझे पसंद आई थी कि Nikhil, really hats off to you. I really feel proud to know a person like you. Seriously, it's very rare somebody has this kind of दैट वाज mindset. द मेन थिंग जहाँ पे मैंने हिट किया था कि नहीं, बंदा हो, फादर होगा आरवी का, मेरा हस्बैंड हो, तो ये वो यही होना चाहिए। दैट्स द थिंग कि मेरा हमारा इमीडिएट कुछ चीजें, जो ये दो चीजें, मैंने इसके पेरेंट्स को संभालने की बात की एंड इसने आरवी को कम्प्लीटली मतलब एज ए फादर एक्सेप्ट किया था। तो वो दो चीजें पे हमारा रिलेशन टिका हुआ है ऐसा। That's so sweet. Thank you so much. Yeah, seriously, Nikhil, you really are an inspiration to many men, many people actually who don't have this kind of mindset. और ऐसा mindset बहुत rare होता है जो इतना accepting हो और जो Thank you, Karuna. So I am really glad. Thank you so much, guys. And definitely, this episode would be shared soon on our channel. And I would share with you whenever it is uploaded on our channel. So do spread the word, and to all the viewers, Deepika and Nikhil is not only a motivating people to us, but to everybody. You can see their story is not just about one thing. There is lot and lot to learn from them. To all, not only Naris, also Nark, दोनों के लिए है. So all of you do share your views and do share your comments in the video section, and do like and subscribe and share to this our channel of Extraordinary. Thank you so much, guys. Thank you. Most welcome.